Evening and welcome. Coming to you live from right on the ghats of the Shipra river from the Nagri of Mahakal. Yes, you see this on my forehead. I went to the temple as well because if you come to Ujjain, your trip is absolutely, waste if you don't go to the Mahakal temple. Interesting this city is. People call it even older than the first, in fact, city, the very, it's older than Banaras, a very pivot of the civilization and also of the Hindu religion and Hindutva. But it's just not that. If you look around this Ramghat, Ujjain is a fantastic mix and something that we are seeing. I will just ask, and this jib will move and it will show you right across the river right now that there are temples, and in between the temples there is these mosque and dargah. That's the beauty of Ujjain. When people talk about the Mahakal temple, the entire economy only surrounded around the Mahakal temple. Ujjain was not always dependent on the tourism pilgrimage that the Mahakal temple brings in. It was also a city of textile mills. We set out and found those abandoned mills and the story of the workers, those who are for the last 3 decades struggling to get compensation to get their dues paid. This is the story of the neglected Ujjain. It used to be a bustling textile mill, and now it is almost like a scene of a horror set where this overgrowth and crumbling infrastructure. But look at this, it's a very old, in fact, infrastructure made possibly just near the time when the independence came to the country, or even before that. क्यों बंद हो गई सुंदर साहब ये सारी मिल्स? आइए इधर चलते हैं। मतलब बिल्कुल ये तो खंडर बन गया है सारा यहाँ पर जो भी कुछ है। मिलें सर क्या है कि मजदूरों मिलें जो सरकार के कारण मतलब बंद हुई हैं ये, क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी कि मिलें चले, क्योंकि इसलिए नहीं चाहती थी क्योंकि VFIR जो ये लाए थे तो उस प्रोजेक्ट के अंदर इनने सारी मिलें धीरे धीरे सब बंद कर दी। उज्जैन की हीरा मिल है, विनोद मिल है, इंदौर टेक्सटाइल। चार कितनी मिल है यहाँ? 4 मिल थी। कितने लोगों को रोजगार देती थी ये? यहाँ पे तो कम से कम 12-15 हज़ार लोग सर्विस करते थे उसमें। दोनों तीनों पाली में। जो लोग बेचारे यहाँ से बेरोजगार हो गए, उनका क्या हुआ? मुझे बताया गया कई लोगों ने आत्महत्या कर ली। परेशानी उज्जैन की परेशान होती थी ये मेला, खंडर बनी हुई परेशान होती थी उज्जैन की, और बहुत लोगों को बेरोजगार मिलता था। जब मेला लग जाता था, जब 10 तारीख और 25 तारीख को यहाँ तनख्वाह बढ़ती थी। ये चुनाव में मुद्दा है क्या? चुनाव में मुद्दा है क्या? चुनावी मुद्दा तो नहीं है सर, क्योंकि ये तो सरकार से इसका फैसला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला दिया है, इससे चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। सरकार चाहे तो चाहे जब पैसा इसका दे सकती है, लेकिन सरकार भी इसमें कई अटकलें करे। बीजेपी की सरकार थी उस समय भी, शिवराज सिंह चौहान ने हमसे कहा था कि हम घर पे आपके साथ खाना खाएंगे, लेकिन फिर भी उनने कोई वो नहीं किया। उनने वहाँ पे कैबिनेट में पास भी किया, पैसा मंजूरी भी ले, लेकिन उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट चले गए। These small houses that you see behind me used to be the worker quarters. Mills are closed. People had no option. They're still living here. Few in hope that they will get some compensation. Others have started moving on and doing other things, but they are still living here. कब से मिल बंद पड़ा है? 92 से मिल बंद पड़ा। कैसे चल रहा है खर्चा? सैलरी क्या तो ऐसे ही चल रहा है। आधे लोग तो मर ही गए, सैलरी क्या चलेगी? वो तो जरा से बच्चे पाले हमने, छोटे छोटे से हुए थे उस टाइम। जब कोई ने अगरबत्ती बनाई, कहीं कुर्सी लगाई, कहीं कुछ करा, ऐसा काम कर करके नहीं है ना बच्चे पाले हमने। जीविका का यही साधन था, और तो कोई साधन था नहीं, बस यही है। अब यही आस लगी है कि ये जो सर्वेंट क्वार्टर है ये भी कुछ जो है या तो ये जगह दे दें या फिर हिसाब कर दें, जो भी हो जैसा भी हो। चुनाव के टाइम में लोग आते हैं मेहता वेता मिलने, आपसे कुछ कहते हैं क्या? सब आश्वासन देते हैं सर, सब आश्वासन देते हैं। मुश्किलें कम नहीं, सहयोग कोई नहीं करता। It's very disheartening to see the state of those mills, and they remember those mills were in fact made right at the time of the freedom, when India gained independence, right about 1947, 48, 49, and for many years, whenever, as you know, I was speaking to those people, Ujjain used to liven up
on the salary day of those mills. About 15 to 20,000 people getting their salary, going out to the market, buying things. That was the backbone of Ujjain's economy. Time have changed, but nothing has changed as far as the development is concerned. People keep talking about issues, and I thought it's better to go and speak to the two contenders, the Congress and the BJP contenders in this election. Very interestingly, the Congress the person who is fighting the election from the Congress, Mr. Malviya, both of them, and Mr. Firozia, both of them have a very clean image. But there is a twist in the tale. For the first time, the Congress feels they have a chance. Listen to what they are saying and I'll tell you why does the Congress feel that they have a chance in this election. इन्होंने कांग्रेस ने जो झूठ बोला था कि 2 लाख रुपए हम किसानों के कर्जे माफ़ करेंगे और महिला सहायता समूह को 1-1 लाख रुपए कर्जा माफ़ करेंगे और बेरोजगार युवाओं को 4-4 हज़ार रुपए, तो 2 लाख रुपए का 2 रुपए भी आज तक किसानों के खाते में नहीं आए हैं, न महिला सहायता समूह को आए हैं। लोग अब गुस्से में हैं, आक्रोशित हैं और वो 19 मई को वोट रूपी अपने मताधिकार से इसका जवाब देंगे। नहीं तो ये तो 15 लाख की घोषणा उन्होंने भी की थी। हमारे मुख्यमंत्री के तो 2 महीने हुए हैं, 2-2.5 महीने हुए हैं, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी समस्या हल कर दी है। किसानों का कर्जा माफ़ किया है हमारे यहाँ पे। नहीं तो वो तो मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी भी भेजी है अभी सबको कि अभी सब थोड़ा समय लगेगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ गया है, अभी नहीं कर पा रहे। नहीं तो थोड़ा टाइम तो लगेगा उसमें, लेकिन कर दिया है और हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम चालू किया है और पूर्व सरकार ने यहाँ पे बहुत बुरी हालत कर रखी है। मुद्दे पे बात अगर अपन करें तो पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा आया है। मोदी जी ने तो काम इतने करे कि अगर मैं आपको गिनाऊंगा तो अपने को 2 घंटे हो जाएंगे, 2 घंटे से भी ज़्यादा हो जाएंगे। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की बात हो, चाहे वो उज्ज्वला गैस की बात हो, चाहे वो भारत आयुष्मान योजना हो, मैं ये प्रमुख योजनाएं गिना रहा हूँ। मोदी है तो मुमकिन है। हमारे यहाँ पे जो है उज्जैन में बेरोजगारी बहुत है। इन्होंने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, वो भी पूरा नहीं हुआ इनका। इन्होंने किसानों को कर्ज माफ़ी की बात पहले की थी, वो भी नहीं हुई है। और यहाँ पे जो स्थानीय मुद्दे हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे स्थानीय मुद्दे हैं। मिलें सब बंद पड़ी है, मिल मजदूरों को भुगतान नहीं हुआ है अभी तक। देश की सुरक्षा, देश की अस्मिता और देश को परम वैभव पे ले जाना है और सुरक्षित हाथों में भारत की बागडोर देना है, तो देश के सबसे बड़े चौकीदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना है। इस मुद्दे को लेके हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का हमको बहुत समर्थन मिल रहा है। हमारे कप्तान जो हैं, हम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और वही प्रधानमंत्री बनेंगे देश के। So that was a tu-tu meme between both the candidates. It was only essential because I just wanted to get you a sense of what is it that they are fighting the elections on. Largely on Modi ji jhoot bol rahe hain and the other person says Modi ji mahan hai. That's the BJP and the Congress divide that you see more than the issues that they fight on. One issue that people keep talking about in Ujjain is the cleanliness of the Shipra River, the lifeline of Ujjain. And what you see behind me, if you just go very close, it's extremely dirty. I caught up with few prominent people from Ujjain, from either communities, Hindus, Muslims, traders, journalists. I got all of them together and we took a boat ride on the Shipra River to try and understand what is it that the people of Ujjain are thinking about this election. Is it the polarization that everybody is talking about? Is that having an effect? Or are the local issues, in fact, dominating than the national narrative? Take a look at my conversation with the people on the Shipra River of the city of Ujjain. So we are here on the Shipra River and we've got some interesting mix of people from Ujjain. But with these gentlemen, let's try and understand what is Ujjain thinking for the election 2019. सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या है उज्जैन का? उज्जैन हमारी आध्यात्मिक नगरी के साथ साथ एक वैज्ञानिक नगरी भी है। इससे हमारी सबसे पहले भूल ये हो गई कि हमने इसे सिर्फ आध्यात्मिक तौर पर देखा है। क्या उज्जैन में इस बार जो लोग बात कर रहे हैं, किस तरह के मुद्दों की बातचीत हो रही है? क्या यहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम मुद्दों की बातचीत होती है? किस तरीके की बातें लोग कर रहे हैं? अभी तो पूरा राष्ट्रीय लेवल पर हिंदुस्तानी जो है हिंदुत्व के मुद्दे पे चुनाव लड़ा जा रहा है। मेरा इसमें ये कहना था कि कोई ऐसा चुनाव जो है लड़ा जाए जो इंसानियत पे लड़ा जाए, भाईचारे पे लड़ा जाए, मोहब्बत पे लड़ा जाए, विकास पे लड़ा जाए। जो नेशनली मुद्दे चल रहे हैं, बालाकोट एयर स्ट्राइक, पाकिस्तान,
क्या उस पर बात हो रही है? लोग किस तरह का चर्चा किस तरह की है उज्जैन में? उज्जैन जो है वो एक महत्वपूर्ण संसदीय क्षेत्र है। ये बीजेपी का एक बहुत पारंपरिक गढ़ रहा है और 1952 से 51 से जो चुनाव हुए हैं अभी तक, उसमें 2 या 3 अवसर ही ऐसे आए हैं जब कांग्रेस के कैंडिडेट जीते हैं। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि इस बार जो है वो कोई भाजपा की यहाँ लहर चल रही है या भाजपा का कोई बहुत ज़बरदस्त माहौल है, ऐसा दिखाई नहीं देता है। राष्ट्रीय स्तर के जो विषय हैं, बालाकोट हो या पुलवामा अटैक के बाद की जो स्थिति परिस्थितियाँ हैं, वो अपनी जगह उसका एक महत्व है। लेकिन उज्जैन में सबसे बड़ा विषय बेरोजगारी का, क्योंकि राजनेताओं चाहे किसी की भी पार्टी की सरकार रही हो केंद्र में या राज्य में, वो बदला बदली भरी होती रहती है, लेकिन वो कोई बड़ा बदलाव यहाँ नहीं ला पाए। ये नदी इस लायक तो नहीं फिलहाल दिख रही, ये जहाँ पे भी हम घाट पर हैं, कि इसमें नहाया जा सके। वो लगता है आपको कि थोड़ा कोई भी सरकार हो उसने काम नहीं करा इसके ऊपर, विषय में ध्यान नहीं? सरकारें ध्यान भी देती है और पैसा भी देती है, लेकिन क्या होता है कि सरकार में जो लोग बैठे होते हैं वो लोगों के रिश्तेदार होते हैं, उनको टेंडर दे देते हैं। अब ये जब टेंडर ले लेते हैं तो सैया भाई कोतवाल तो डर काएगा, ये खूब दबा के पैसा कमाते हैं। और इनकी कोठियाँ आप जाकर के देखेंगे तो शिप्रा मैया की सफाई का पैसा इनकी कोठियों के मार्बलों में मिलेगा आपको। इसलिए शहर का विकास नहीं हुआ। हमारा नेता पार्टी का ना हो, जात का ना हो, धर्म का ना हो, वो कार्य करने वाला हो, तब जाकर के उसको जनता वोट दे। मंदिर है क्या इशू? राम मंदिर की बात होती है यहाँ पे? राम मंदिर की बात बिल्कुल होती है, और अगर 4 हिंदू बैठे और संत अगर बैठे तो राम मंदिर का बात नहीं हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। सपने में भी हमें राम मंदिर का बात होता है, लेकिन राम मंदिर की बात पे जो छलावा किया गया राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। किस राजनीतिक पार्टी में? सीधा सीधा बताइए ना। किस नहीं, किस यहाँ तो जख्म इतने सीने पर और पीठ पर कि बता नहीं सकते। आप किस इशू पे वोट डालोगे? I'll have to see कि who is the one filled with ambitions and whose visions can among your candidate या nationally? Both. क्या उज्जैन में नेशनल मुद्दों के ऊपर वोटिंग होने वाली है या उज्जैन के लोकल मुद्दों पे? जब चुनाव आते हैं उस वक्त बहुत सारे मुद्दे उठ करके आते हैं और हर पार्टी ये चाहती है कि वो अपने मुद्दों को ला करके जो उसने काम किया है वो उसको भुना करके और वोट ले और वो जीत करके सेंट्रल में चले जाए। लेकिन हम उज्जैन के अंदर अगर देखते हैं तो उज्जैन में ऐसा अभी कोई मुद्दा नहीं है कि जिसके ऊपर कोई भी पार्टी वोट मांग सके। एम्प्लॉयमेंट भी महाकाल के नाम पर है और तो कुछ खास लाए नहीं, ना इंडस्ट्री लाए ना कुछ और लेकर आए। सर बेसिकली उज्जैन पहले एक तो धार्मिक नगरी है, उसके अलावा मीलों का शहर था ये पहले। यहाँ पर काफ़ी रोजगार था, जब मील चलते थे तो बाहर के लोग भी आके यहाँ रहते थे और जिसके कारण हम सभी व्यापारियों का घर चलता था, क्योंकि लोग ज़्यादा थे। वो सारा व्यापार उठ करके इंदौर या अन्यत्र चला गया, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि नगर निगम की जगह नरक निगम है और प्रशासन किसी भी तौर पे, ना पुलिस ना प्रशासन, सब बेखौफ है। मतलब किसी भी तरीके से व्यापारी जो है वो बहुत ज़्यादा दबा हुआ है। यहाँ भारत की जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं वो भारत के मतदाताओं के साथ, चाहे किसी भी संप्रदाय का हो या किसी भी जाति का हो, उसके साथ में हमेशा आस्था के नाम पर मीटू किया जाता है और मीटू आप अच्छी तरीके से समझते हैं। पाकिस्तान की बात होती है चुनाव में, बालाकोट की बात होती है चुनाव में, यही मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए क्या? नहीं, इन मुद्दों पे तो चुनाव ही नहीं होना चाहिए और पाकिस्तान हमारे लिए इशू नहीं होना चाहिए। हमारे लिए इशू होना चाहिए 84 करोड़ लोग वो जो अर्जुन सेन गुप्ता की रिपोर्ट में 20 रुपए से नीचे कमा पाते दिन में और खर्चा तो कर ही नहीं पाते। The good thing that we saw in Ujjain and then of course in this conversation that has come out, that it's not a given contest. If you want my vote, you have to work hard, you have to fulfill my aspiration. It's a beautiful evening. It was a very, very hot day, let me tell you. It was about 41 degrees Celsius through the day. At least the evening is better and you can see these fountains on the River Shipra also now coming up, getting to life. I have with me, खुद आप इनका तारुफ ये खुद ही कराएंगे। क्या नाम है सर आपका? मैं स्वामी मुस्कुरा के उज्जैन। स्वामी मुस्कुरा के उज्जैन। आप साहब? पंडित दिनेश रावल, स्वामी दिल मिला के उज्जैन। स्वामी मुस्कुरा के, स्वामी दिल मिला के। Their speciality is you ask them a question, they twist it and give a funny reply. Let's try that. चुनाव आ रहे हैं साहब, कोई पाकिस्तान की बात करता है, कोई कहता है चौकीदार चोर है। कमजोर हाथ मुल्क की तकदीर बन गए, कमजोर हाथ मुल्क की तकदीर बन गए और सब लोग चुप है जैसे कि तस्वीर बन गए, लेकर सहारा सियासत की रहनुमाई का और कल के लुटेरे आज के जहांगीर बन गए। अरे वाह, बढ़िया। अब ये बताइए कि उज्जैन में क्या माहौल है? कह रहे थे शिप्रा नदी बिल्कुल साफ कर दी, हमें तो बहुत गंदी दिखाई पड़ी। पूरा राष्ट्र करे यही पुकार, पूरा राष्ट्र करे यही पुकार, 100% मतदान हो अब की बार। शिप्रा शुद्धिकरण
ही यहाँ का स्थानीय मुद्दा है। हाँ। मैं यहाँ के स्थानीय जो उम्मीदवार है उनसे निवेदन करता हूँ कि सबसे पहले शिप्रा शुद्धिकरण को ही महत्व दे। चलिए शिप्रा शुद्धिकरण को महत्व दे। वेलकम बैक। We are coming to you live, 15th episode of Election Express. It just seems we started yesterday and we have already covered the entire south of India, Maharashtra, and now we are in Madhya Pradesh. While you talk about Ujjain, everybody, and as you can see on my forehead, everybody has to in fact go to the temple, to the Mahakal temple. One very important ingredient in the Mahakal temple is the flowers. I went to the flower market in the morning today. It was a fantastic, fascinating conversation with the colorful, lovely flowers and a fantastic fragrance of the flower market. There was a lot of political heat as well. Take a look at this very colorful flower market of Ujjain. Well, in the flower mandi, let's try and get a sense of what people are thinking. क्या कहते हैं भाई साहब? मोदी सरकार, बीजेपी बिल्कुल। भैया कहाँ? इस बार कांग्रेस सरकार, राहुल गांधी पीएम बनेंगे। देखो मोदी चलिए वोट डाल लीजिएगा सब लोग जाके। वोट डालने जाएंगे ना? मंडी बंद रहेगी, मंडी बंद रहेगी। हम भी जाएंगे, साथ में लोगों को भी ले जाएंगे। मंडी बंद सर बोल लिया, इन्होंने बोल लिया कांग्रेस मोदी सब चल रहा है। अंदर चलते अंदर। अरे तुम्हारा तो वोट भी नहीं है, काहे का? आपका नाम क्या है सर? दिलीप बारोड़। गुलाब सेठ बोल रहे हैं आपको? जी हाँ, गुलाब। खड़े आप गेंदे में? नहीं, गुलाब भी है ना हमारे पास। गुलाब भी है हमारे पास। क्या कितना फूल आ जाता है इस मंडी से महाकाल के पास? महाकाल से 10-20 कुंटल रोज आता है। रोज आता है। और मंडी में कितना व्यापार होता है? कम से कम करोड़ों से होता है। करोड़ों का? हाँ। जीएसटी आया, डिमोनेटाइजेशन आया, क्या फर्क पड़ा व्यापार में? फर्क पड़ गया ना पहले से। बाहर जाना माल बंद हो गया। हाँ, बाहर जाना बंद हो गया। नुकसान हुआ? नुकसान हुआ। अभी क्या माहौल है? अभी तो मोदी जी का माहौल है ऐसे भी। अच्छा। हाँ, और पिछले 5 साल से मोदी जी की ट्यून है मेरे पास। अभी कमल खिल नहीं रहा है, कमल आता फरवरी में। कमल अभी खिल नहीं रहा है? हाँ जी। अभी तो वो खिलेगा, हाथ का पंजा ही। हाथ का पंजा खिलेगा। और क्या? Let me just get you the fragrance of this गुलाब. कितने का बिक रहा है सर गुलाब? 30 रुपए किलो। माला किसको चढ़ेगी गुलाब की उज्जैन से? कौन जीत रहा है? कौन जीत रहा है? कांग्रेस। कांग्रेस जीत रही है। पंजे में आप लगाएंगे। नुकसान नहीं हुआ नोटबंदी से? कोई नुकसान नहीं हुआ। तो किसका माहौल चल रहा है? मोदी जी का। वो भाई साहब वहाँ बैठे हुए हैं जी। इतना बड़ा बही खाता लेके बैठे हैं। कितना धंधा हो रहा है मंडी में? मंडी का धंधा तो बढ़िया चल रहा है अभी। बढ़िया चल रहा है। फूल कौन सा ज़्यादा चलता है? गुलाब चलता है या सभी तरह के चलते ज़्यादा? सभी तरह के फूल चलते हैं। सभी तरह के चलते हैं मौसम के हिसाब से। तो अभी चुनावी मौसम किसका है सर? अभी तो देखो क्या है, दोनों पार्टी बराबर चल रही है अभी। बराबर चल रही है दोनों पार्टी। टक्कर है इस बार? टक्कर है हाँ। जो माहौल पिछली बार था वो माहौल इस बार नहीं है मोदी जी का। लहर नहीं है? लहर नहीं है। जो लहर थी पिछली बार वो लहर नहीं है। अच्छा। मैं सबसे सस्ता मंडी में फूल बेचता हूँ। क्यों? प्रॉफिट कहाँ से आता है? माल मुनाफा कहाँ? कमीशन पे बेचते हैं। कमीशन पे बेचते हैं। हाँ। सस्ता। क्या चल रहा है दादा माहौल? आप तो बहुत सारी बार वोट कर चुके हो, किसको वोट कर रहे हो? अरे वोट मरे, अब अपना स्वाद देखते हैं। वोट काहे को दे हम? ओके। पार्टी वाले नहीं, हम पार्टी वाले नहीं, हम स्वतंत्र हैं। पार्टी वाले नहीं, स्वतंत्र हैं। नोटा वाले बाबा हैं ये। There was an interesting conversation there, and those guys didn't let us go. They wanted us to sit and have a meal with them. We had to rush to put this show together. So that's all that we have in the Election Express this evening from Ujjain. Tomorrow we would be in Bhopal, getting you a sense of what is happening in Bhopal. This is the Malwa region, and I can't leave you without some taste of the Malwa music. This is the Malwa Bhog. Enjoy this. These lovely ladies singing the very traditional Malwa Bhog here in Ujjain. I'll be back tomorrow. होई ना मालवा का भाग जगावेगा, होई ना मालवा का भाग जगावेगा,
हो जी देश परायो रईबर आवेगा, हो जी देश परायो रईबर आवेगा, इना हवेली का कवेलू उड़ावेगा। Thanks for watching the video. For more such news and updates, please like, share and subscribe to India Today. Also check out our other great videos from our channel. We know you will love to.